Yes, good morning, students. Most welcome in my online class today. Dear children, today I am presenting here in my online class with a chapter 6 Understanding Our Criminal Justice System. Right? So, today's I am going to start the revision work, revision question answers. I am going to explain and you will listen this video carefully and try to understand the meaning of the following questions which are I am explaining here. And before this explaining, I want to share some views about the lead application, student lead application. Dear children, I have founded the sheet of mobile numbers in the office. There is a number of students are not added in the school and their numbers are not registered in the school. So please update and download this lead student leads application in your mobile very soon. Suppose that any students have a problem of for the downloading of this students leads app, so please contact to the school and inform to Vani sir as well as principal sir. And so please try to load again your this app and application in your mobile, because it is very compulsory. But coming days your study will start by the help of this app. In this app, each and every type of knowledge you can get: books, syllabus, timetable, exam, question paper, and different everything you can receive, you can get, you can take from this app. You can get the good knowledge also. Then some expert also they will available in this video, and they will tell you some good etiquettes, good about good education policies and different type of knowledge which are provided by the CBSE board of Delhi. So please, it is very compulsory. Please download this application in your mobile and register your mobile number very soon. Now listen. Now we'll discuss about the chapter, because this chapter is very compulsory for its third exam. And you know that I have sent the every type of in all information about the unit third exam in your WhatsApp. I always guide you each and every types of information. I always send, but some students are listening carefully, but some students they are ignore my this all informations, but they are not pay attention on this education, because it is your last session is junior section. Next session you will reach in the higher secondary classes. So what will you do there? Because in the class time also many time I told you कि बेटा update yourself, update reading skill, writing skill, learning skill, and whichever instructions given by me as well as school side, principal side. So please follow it carefully and do the study carefully. So please follow the rules. Pay attention your study carefully, because your exam will be start in 3rd of February 2020.
So this chapter is very compulsory. I have given you syllabus also. There are 3 chapters are coming in this exam, unit 3rd exam. So I have delivered in your mobile number in WhatsApp, and I explained in the class also. So please listen carefully and follow me, and update your knowledge, update your study carefully. Right. Now this first question. In a town called the Peace Land, and the supporters of the Festa football team learned that the support the Jubilee football team in the nearby city about the 40 kilometer away have the damaged the ground on the final between the both team is to be held the following day. A crowd of the Fiesta fans named with the deadly weapons attacked. So the homes of the supporters of the Jubilee football teams in the town, in the attack of the 10 men, and the killed 5 women and gravely hurt. Many homes are destroyed and over 50 people injured. Imagine that you and your classmates are now part of the criminal justice system. You first divide to class into the following group of the person. Right, the public prosecutor, डिफेंस लॉयर, जजेस. ठीक है. तो इस मैटर को समझाने के लिए आज हमारी जो सरकार है, मान लीजिए कहीं पर कोई दंगा, कोई फसाद, कोई विशेष प्रकार का कोई जो है डिस्क्रिप्शन और क्रिमिनलिंग सिस्टम अपडेट होता है, तो उसके लिए हमारी गवर्नमेंट ने इस चीज को, इस फाइटिंग को या डिस्क्रिमिनेशन को, इस अटैकिंग को या डिस्टर्ब सोसाइटी को मेंटेन करने के लिए पुलिस, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, डिफेंस लॉयर एंड जजेस, these person, this particular get the help of those people who are injured by the other people, by the powerful party, and when is poor people are the weak people that tortured by the powerful person, so then that person visit to the police station, court, and help. There they help policemen and police help to that people person, and in the court the public prosecutor यानी जो गवर्नमेंट वकील और डिफेंस लॉयर जो हमारा एक भी एक प्रकार का जो है डिफेंस लॉयर भी होता है, जो उसको गवर्नमेंट वकील, और जजेस, ये हमारी जो है वहां पर कोर्ट में मदद करते हैं और हमारे अधिकार के लिए दिलाने के लिए सही पॉइंट पर हमारे से बात करते हैं. Show the column given downside, the function, the column of the right side, a list of this function. Match these with the rule that are the listed on the left. Have each group pick the functions that the needs to the problem and profession perform to the being of justice, and those who were affected by the violence of the first offense. In what order will these functions he perform? To write this function, police, here you will fill up the function, you will mention the function of these people's role. Number 1, police, what is the function? Public prosecutor, function, and defense lawyer, the function you will write here.
And now these questions. Number answer is police record the statements of the witness, take photograph of the burnt homes, arrest the first offense, get the assaulted woman medically examine. तो पब्लिक का जो रूल है, पुलिस का जो रूल है, वो सबसे पहले यदि कहीं पर दंगा होता है, कहीं फसाद होता है, तो उस सिस्टम को मेंटेन करने के लिए वहां पर सबसे पहले उस रिकॉर्ड को बनाती है, उस रिकॉर्ड का स्टेटमेंट तैयार करती है, उसके गवाह लेती है। पुलिस का जो रिकॉर्ड बना लेती है, पुलिस का रिकॉर्ड में सबसे पहले स्टेटमेंट्स में उनके विटनेस, उसका रिटन रिकॉर्ड, उसका फोटोग्राफ्स, और जो हमारा जहां पर घरों को जलाया गया, लोगों के साथ लोगों को उत्पीड़ित किया गया, विभिन्न प्रकार से उनको प्रताड़ना दी गई, तो सारी की सारी फोटोग्राफ, और वहां पर कुछ खड़े लोगों के साथ जो विटनेस यानी गवाह जो हैं उनको लिया गया, जो उनके फैंस हैं उनको अरेस्ट किया गया, ठीक है। वुमेन बहुत सी मेडिकली हैं, उनको एग्जामिन के लिए सेंड किया गया, उनका जो है रिकॉर्ड हासिल किया गया, उनके बारे में बातचीत की गई। तो ये तमाम प्रकार के जो रिकॉर्ड होते हैं, ये पुलिस अपना रिकॉर्ड तैयार करती है। एक तो पुलिस का काम ये होता है, मतलब आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द रिकॉर्ड यानी द ड्यूटी ऑफ द पुलिस। तो पुलिस क्या करती है, सबसे पहले इन्वेस्टिगेट करती है, इन्वेस्टिगेशन में अपना रिकॉर्ड तैयार करती है। बाय द वे ऑफ इन्वेस्टिगेशन द पुलिस डिपार्टमेंट प्रिपेयर द रिकॉर्ड ऑफ द दैट पीपल and that different type of exploitations, रीलिंग, रियोट्स, जहां पर जो भी हड़ताल पड़ताल, जहां दंगा या जो भी होता है, उसके लिए मतलब जो भी रिवोल्ट्स होते हैं, वहां पर जाकर पुलिस अपना क्या करती है, पहले रिकॉर्ड बनाती है, वहां के लोगों को पकड़ती है, वहां के लोगों से रिकॉर्ड लेती है। तो सबसे पहले वो अपना एक रिकॉर्ड तैयार करने के लिए पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है। पूरी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद रिकॉर्ड लेती है, फोटोग्राफ्स लेती है, उसके बाद वो सारी फाइल को कोर्ट में दाखिल करती है। जब वो व्यक्ति जाता है तो पुलिस के पास सारा रिकॉर्ड होता है, और जब वहां पर कोर्ट में उस थाने की पुलिस को जब कॉल किया जाता है तो वो अपना रिकॉर्ड वहां पर पेश करती है, और उसी रिकॉर्ड के अनुसार फिर वहां का जज या पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जो भी लॉयर वकील होते हैं, वो केस को आगे फाइल करते हैं। इसके बाद आता है हमारा पब्लिक प्रोसिक्यूटर। इसमें ये था क्रॉस एग्जामिन मतलब चार्जशीट जांच करना, एंड द विटनेस एग्जामिन दैट विटनेसेस इन द कोर्ट आर्ग द केसेस ऑफ द विक्टिम्स, यानी जो विटनेस होते हैं, जो गवाह होते हैं, वो जो विक्टिम्स होता है, अपराधी होता है, उसके खिलाफ कोर्ट में सही जवाब देती है। जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है, विदाउट एनी पे द हेल्प ऑफ टू द नीडी पीपल्स, द पुअर पीपल, वीक पीपल, एंड जो क्लाइंट है और उसके खिलाफ जो बात कही गई है, जो उसको बताया गया, जो उसको मतलब प्रताड़ित किया गया, तो प्रताड़ित पर्सन के साथ पब्लिक प्रोसिक्यूटर यानी सरकारी वकील जो है वो हेल्प करता है विदाउट एनी पे, और उसके साथ जो विटनेस होते हैं वो उसकी हेल्प करते हैं, और उसमें जो भी गवाही, जो भी अर्ज होती है, वह वहां पेश करते हैं कोर्ट में जाकर, और पेश करने के बाद फिर विक्टिम को पनिशमेंट कोर्ट देती है। डिफेंस लॉयर क्रॉस एग्जामिन in the witness and meet the accused to person examine the witnesses in the
कोर्ट, जज हियर द विटनेस, उसके बाद कोर्ट में उस सारे गवाहों को पेश किया जाता है और उसके बाद फिर जज जो है सारे विटनेस की जो बात होती है उसको सुनता है, राइट्स द जजमेंट, और उस जजमेंट को नोट करता है, डिसाइड फॉर हाउ मैनी ईयर्स द एक्यूज्ड, उस केस को कितने साल रन अप किया जाता है, विल बी पुट इन द जेल, पास इन द जजमेंट, और उस जजमेंट के लिए उस क्रिमिनल को जेल में डाला जाता है और जेल में रखने के बाद फिर उस पर ट्रायल चलता है, केस चलता है, उसके बाद उसका जो भी कोर्ट जजमेंट देती है वो बाद में होता है। क्योंकि जेल में डालने का मेन काम केवल जज का होता है, जो भी जिस प्रकार की फाइल इशू होती है जज अपने आप को कंसीडर करता है, समझता है, उसके बाद फिर उसको उसी प्रकार का पनिशमेंट विक्टिम को देता है। द विक्टिम वुडंट गेट जस्टिस if only one person performed all of the functions of the criminal justice systems, because the separation of the power is necessary within a judicial system। अब यहाँ पर बात होती है कि एक अपराधी जो है वो सारे के सारे, मतलब उसमें जो उसके साथ कई लोग जुड़े हुए हैं, उसके फैमिली के लोग हैं, उसके बेटे हैं, उसकी पत्नी है, उसकी बेटी है, उसका भाई है, उसकी माँ है, लेकिन वो ये बोलता है कि ये सारे अपराध केवल मैंने ही किए हैं, तो ये नहीं माना जा सकता है। जज कहता है कि एक ही व्यक्ति सारे क्राइम नहीं कर सकता है, क्योंकि उसमें किसी न किसी की भागीदारी अवश्य होती है, कोई उसको सपोर्ट करता है, कोई उसको राय देता है, यहाँ पर भी यदि कोई उसको एडवाइस भी देता है वो भी उसी के बराबर वो क्राइम कर रहा है। तो उसकी जो है वो कहता है कि जैसे विक्टिम वुडंट गेट जस्टिस एंड इफ ओनली वन पर्सन परफॉर्म द ऑल फंक्शंस ऑफ द क्राइम, जो सारे के सारे फंक्शन एक ही व्यक्ति उसको एक ही परफॉर्म कर रहा है, तो जस्टिस सिस्टम बिकॉज सेपरेशन ऑफ द पावर is necessary within the judicial system to, since absolute power can never be fair। नेक्स्ट आते हैं, डिफरेंट पर्सन नीड टू प्ले डिफरेंट रोल एज ए पार्ट ऑफ क्रिमिनल। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग प्रकार का जो है क्रिमिनल रोल मिलता है। And justice system, because one all aspect of the all investigation and trial can't be conducted by the person along as the initial entail divisor kind of the work, including the arrest, recording of the witness, statement, defense of the accused and victims, parties passing of the fair trial and judicial correct judgment. Two, if all these powers are vested in one person alone, they might be misused and will thereby violate the rule of law based on equal and just decisions। To this chapter only this much questions and details of the chapter according the book work. This is your book work I explained. Now many questions you have written already in your notebook. The number of questions will come entire your that sheet, and some questions like true false, fill in the blanks, MCQs mostly come entire your that book.
Now listen. One more important points here given, that this one is public facility and judicial system, judiciary. This chapter also I explained here, judiciary. This one, read this. Ye chapter. See this, some questions will come entire the chapters also, right? This statement, this story I taught you in the class also. This one story has Santi Devi. The very important, but I think that's the chapter. In this chapter, the book work is not a properly explained in the Savitri Devi. Sorry, Santi Devi. अब ये चैप्टर क्या बोलता है कि एट देयर अपार्टमेंट ऑफ मुंबई मिस्टर सिंदेस गेटिंग ड्रेस्ड सी मिसेस सिंदे एंड सी हैज बीन frantically searching for her gold chain for over an hour. तो यहां पर एक फैमिली है मुंबई में. फैमिली में दो व्यक्ति हैं जिसमें मिसेस सिंदे और मिस्टर सिंदे वो एक अपार्टमेंट यानी एक फ्लैट में रहते हैं. और उस फ्लैट में एक दिन की एक घटना होती है. उस घटना में, उस इंसिडेंट में होता है क्या है कि मिसेस सिंदे जो होती हैं, मिस्टर सिंदे जो है वो अपनी ड्रेस यानी को ढूंढ रहे हैं, गेटिंग ड्रेस, और मिसेस सिंदे जो है वो अपना नेकलेस यानी हार, गोल्ड चैन ढूंढ रही हैं, लेकिन उनकी चैन को पता नहीं कहां है, वो मिल नहीं रही है. आई एम श्योर इट इज दिस ड्रॉ, वेयर कुड इट गॉन. अब जब उन्होंने अपनी ड्रॉ को खोला, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, ये मिसेस सिंदे हैं और मिसेस सिंदे जो है वो ड्रॉ में देखती हैं उनकी चैन. अंत में वो अपने फोरहेड को पेट करती हैं, पेटेड करती हैं, यानी टच द हैंड ऑन द फोरहेड, अपने माथे पर हाथ लगाती हैं कि मैंने कहाँ रख दी, वो सोचती हैं. फिर होता क्या है कि शांति हेमबर्न हैज बीन वर्किंग इन द हाउस फॉर द पास्ट 3 years. एक महिला है जिनका नाम है शांति हेमबर्न. हेमबर्न तो जो वो है वो उसके पीछे 3 सालों से उसके घर में काम करती हैं. होता क्या है कि शांति है, अब जाकर मिस्टर जो मिसेस सिंदे हैं वो शांति से मिलती हैं. शांति से मिलती, हो सकता है उनको लगता है जैसा आप पिक्चर में देख रही हैं कि होल्डिंग द फिंगर ऑन द शांति, दिस इज वन योर माय राइट हैंड साइड स्टैंडिंग द शांति दैट हाउस मेड, और in my left hand side is holding the finger on that woman. This is a Mrs. Sinde, and asking that कि have you begin the steal now, and have you begin to steal now, and that to my gold chain, bring your trunk, I want to search it, we have called the police, so if you have the chain pre-written. वो कहती है
कि अगर तुमने मेरी चैन को चुराया है तो प्लीज मुझे दे दो, वरना मैं पुलिस को अभी बुला देती हूँ। ठीक है, तो ये बात उसको बोलती है। लेकिन शांति कहती है मैम आई हैवंट स्टोलन इट, मैंने इसको नहीं देखा है, मैंने नहीं लिया है। अच्छा, इसके बाद होता क्या है, यहां पर ये है कि यार हरी अप वी आर गोइंग टू द लेट। यहां पर जो है इनके हस्बैंड आते हैं और ये मतलब पहला एक एपिसोड ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। तो ये सेकंड एपिसोड मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे इसमें ये आई थिंक दैट दिस फर्स्ट इज, चलो ये तो ये उनको बोलते हैं कि जल्दी करो भाई और मुझे देर हो रही है। आई कांट फाइंड माई गोल्ड चैन, इट इज नॉट इन द ड्रॉ एंड सस्पेक्ट दैट शांति माइट हैव स्टोलन इट। सी always spends a long time and dusting my rooms। यहाँ पर मिसेस सिंधे जो है वो अपने हस्बैंड मिस्टर सिंधे से बोलती हैं कि मेरी चैन जो है मेरे ड्रॉ से गायब हो गई है और चैन मेरी नहीं मिल रही है। लगता है कि शांति जो है मेरे रूम में काफी देर तक वो वहां पर डस्टिंग करती है, साफ सफाई करती है। लगता है कि शांति ने मेरी चैन को स्टोलन कर लिया है, यानी चुरा लिया है। और इसमें जो है मिस्टर, यहां पर शांति देवी, मैंने ये बोला आपको अभी बोल दिया, तो ये जाती है और उसको बोल देती है। तो यहां पर मिस्टर सिंधे सर्च द शांतिस ट्रंक। अब इसमें जाकर वहां पर एक शांति के पास एक ट्रंक यानी संदूक पड़ा हुआ है, उसको जाकर वो फाइंड एंड इनवेलप जो है इनवेलप जो है वहां पर रखा हुआ है, उसमें एक एनवेलप मिलता है और उसमें 10,000 रुपए रखे होते हैं। He screams at Santi saying that this is the money and she got from the selling the chain। ये कहते हैं कि भाई ये 10,000 रुपए जो तुमने रखे हैं ये मेरी चैन बेचकर तुम लाई हो और इस चैन का ये पैसा है, तो बताइए आपने चैन को क्यों चोरी किया। अब शांति का क्या बोल रही, बेचारी गिड़गिड़ा रही है बहुत बुरी तरीके से, कह रही है साहब माई ब्रदर, मेरे भैया साहब, माई ब्रदर एंड आई बीन सेविंग दिस मनी ओवर द लास्ट 1 ईयर। हम लोग, मैं और मेरा भाई जो है, हम लोग काम करते हैं, बड़े बड़े मिन्नत विनती करके वो बात बता रही है कि भैया हमने अपना छोटी छोटी पैसों को जोड़ा है मेहनत करके, मैंने और मेरे भाई ने, तो हमने ये सारा पैसा बचा के रखा हुआ है। वी वॉन्ट टू बाई ए बुल व्हेन वी गो टू आवर ब्लेज। मैडम आई एम इनोसेंट, मैं मिस बिल्कुल मैंने कोई अपराध नहीं किया, मैं निर्दोष हूं और मेरे भाई ने और मैंने ये 10,000 रुपए जोड़ के रखे हैं, क्योंकि जब हम अपने गांव जाएंगे तो वहां पर एक बैल खरीदेंगे और वहां से जाकर हमारा भाई वहां पर कुछ खेती बाड़ी करेगा। तो ये 4 एपिसोड हैं, इसमें से आप 4 क्वेश्चन फाइंड आउट करोगे and it means that you will listen this episode carefully and read again and you will find out 4 questions very short, as well as you can find out MCQ type questions also. You can make so these questions you will write in your notebook also. तो thank you dear, आज का इतना ही है, बाकी you will follow me carefully. Thank you.